हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक्षा फ्रॉम कैड सेंटर। तो अगेन मैं आई हूँ एक जॉब वैकेंसी लेके, जो है सिविल स्टूडेंट्स के लिए, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये जॉब वैकेंसी किस बारे में है। पहले तो ये देखते हैं कि आपको ये वीडियो देखना क्यों ज़रूरी है। ये वीडियो आप देख के क्या करोगे, इस वीडियो देखने का मोटिव क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रोडक्ट आर्किटेक्ट क्या कहते हैं। तो पहले उनको सुनते हैं। Hello friends, welcome to the section of job study. This is Kaustubh Panse, product architect, design your own university. Let's first understand what is this section all about. Guys, when we conducted the survey for student, about 500 people have filled a survey. The major pain area of student that in which we need to support them according to the survey is interview preparation. So for that reason, to prepare you for the interview, we have created this section. Yeah, so let me allow me to explain it one by one. Now, why you have to see this video? Why you have to take notes on this? See, the first reason is why you have to do it is you have to study the job market, because in a market, in a job kind of market, there are a lot of companies. So we want you to make very rational choices. So first study job market. Then once you understand market, then set your goal that I want to work in this profile. I want to set vision. I want to become like this person. I want to achieve this much salary. And then once you have set a goal, then you go for interview preparation. Begin your interview preparation. Right now, what is the whole agenda? See, my entire team is working with you. We are conducting interviews, and we have found out that students are not even aware of the name of the company. So imagine you want to work in a multinational company, but you don't know their names. So forget about their job profile, their clients, projects, everything. So here in every video, we will improve your knowledge just by 1%. We will improve your information by just 1%. Now you do it for 6 months. So from this knowledge, you will have the entire market study done. So you can make very good choices. Second reason is how do you prepare yourself for an interview? Because most of you are fearful about the interviews for a simple reason, you don't know what would be asked in that interview. So my recommendation is, whenever you are seeing this video, come with a diary, prepare notes. Yeah, you make a special job study diary. And finally, you explore the employer's website. That is very, very important. Because I have to prepare this video in a short while, I cannot explore it on my own. So you take your own time and explore it. The third point is what you have to do when you do this. It's a very simple process. First thing is you analyze your skills. I will be telling you what kind of skill requirement is there in the market. There are 3 kind of skill requirement for any job profile. One is software skills, other is design skills, and third is soft skills. Yeah. So every company, depending upon, will have variable requirement in the 3 areas. So all these 3 areas, now analyze your skills. Yeah, how much designing skills you have, what kind of software skills you have, and what kind of soft skills you have. Yeah, and once you do this, just become aware of 2 things. What are these 2 things? These 2 things are, whenever you were seeing that video, were you having a sense of self-belief? Were you feeling confident in that area? Just be aware of that and note down those points. Now, you also see, fear is a very good indicator. Fear only means that you are not prepared in that area. So if they are asking, let's say for example this video, if this is asking you to have excellent spoken English skills and you feel fearful, अगर आपको डर लगा है तो इसका मतलब आप वहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो ये जो फियर है उसके भी पॉइंट आप नोट डाउन करो। यहाँ पे टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये इसको मेंशन करो। अभी क्या करना है कि जिस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है उसको वैसे ही मत छोड़ो, वेरीफाई करो। देखो उस पर कोई असाइनमेंट सॉल्व करके, कैड सेंटर के ट्रेनर से जाके मिलो, पूछो कि सर ये मेरे स्किल्स बराबर है क्या, अपने लाइफ के ये पॉइंट देखो, है ना। अभी जहां पे आपको फियर महसूस हो रहा है, सिंपली आपको जाना है यूनिवर्सिटी में लॉगिन कीजिए। मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं, उस सेक्शन में जाइए और खुद उसका प्रिपेयर कीजिए। या सो दैट इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द बिजनेस। अब देखते हैं कि जॉब वैकेंसी क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर की उन्हें नीड है, कौन सी कंपनी की तरफ से जॉब वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। अब जॉब वैकेंसी क्या है, ओपनिंग कौन से सॉफ्टवेयर पे है। तो ओपनिंग एज अ फ्रेशर आर्किटेक्ट के लिए है, इंटर्न आर्किटेक्ट के लिए है और इंटीरियर डिजाइनर के लिए है। मतलब तीनों रोल के लिए आपको ये वैकेंसी है।
मतलब फ्रेशर आर्किटेक्ट के लिए आप जॉब कर सकते हो, इंटर्न आर्किटेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर इंटीरियर डिजाइनर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट इंटीरियर बैकग्राउंड के है, जो स्टूडेंट आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के है, वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। तो चलिए पता करते हैं इंटीरियर डिजाइनर करते क्या है, फ्रेशर आर्किटेक्ट करते क्या है, उनका जॉब रोल रहता क्या है। तो यहाँ पे मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है, तो पता करते इंटीरियर डिजाइनर करते क्या है। तो इंटीरियर डिजाइनर का क्या काम रहता है कि असिस्टिंग द सीनियर डिजाइनर, देन वर्क विद टीम टू कंसेप्चुअलाइज डिजाइन एंड डेवलप इट फर्दर, देन यूटिलाइज CAD सॉफ्टवेयर टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट डिजाइन एंड डिटेल्स, देन असिस्ट इन रिसर्च एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड साइट वर्क्स। मतलब जो जूनियर इंजीनियर या फिर जो इंटीरियर डिजाइन या फिर फ्रेशर आर्किटेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको उनके सीनियर डिजाइनर को असिस्ट करना रहता है, या फिर जो CAD सॉफ्टवेयर जो है, मतलब AutoCAD, Revit जो सॉफ्टवेयर है, उनके ऊपर आपको एक डिज़ाइन प्रिपेयर करना रहता है, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना रहता है। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की नीड है, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए। तो पता करते हैं कि ये कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी की तरफ से आपके लिए ये इंटीरियर डिजाइनर या फिर फ्रेशर आर्किटेक्ट की ओपनिंग आई है। तो कंपनी की वेबसाइट तो मैंने यहाँ पे दी है। जो कंपनी है वो है AN आर्किटेक्ट करके, मतलब अमृता निखिल आर्किटेक्ट करके एक कंपनी है। उनकी जो मेल है वो यहाँ पे, उनका जो मेल है वो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, तो आप उन्हें मेल कर सकते हो, या फिर उस कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये AN आर्किटेक्ट क्या है, उनके प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, ये अगर आपको देखना है, ये अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है, तो उनकी वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप वहाँ पे जाके आप डिटेल में चेक कर सकते हो। ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है इंटीरियर डिजाइनर के लिए या फ्रेशर आर्किटेक्ट के लिए, तो उनके एक्सपेक्टेशन है इसकी सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। तो कौन से सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, तो AutoCAD, SketchUp एंड SketchUp V-Ray, ये 3 सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो AutoCAD सॉफ्टवेयर है क्या, तो AutoCAD सॉफ्टवेयर जो है वो डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है। मतलब आप जो प्लान है, आपके पास जो प्लान होगा वो आप प्लान AutoCAD सॉफ्टवेयर में बना सकते हो। ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, उसमें आप डिटेल में ड्राइंग दिखा सकते हो, डिटेल ड्राइंग कर सकते हो AutoCAD सॉफ्टवेयर में। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि आप हैंडली जो, मतलब हाथ से आप ड्राइंग निकालते थे पेपर पे, एक A4 साइज का पेपर था, उस पेपर पे आप हाथ से ड्राइंग निकालते थे, स्केल मेजरमेंट लेके आप ड्राइंग निकालते थे और उसकी ब्लूप्रिंट आप सबमिट करते थे। वो तो साइट पे जो थी वो उसी की ब्लूप्रिंट यूज करते थे। अब वो जमाना गया जहाँ पे ब्लूप्रिंट या फिर हाथ से ड्राइंग करना ये सब हुआ करता था। अब एडवांस वर्जन है, तो एडवांस में आप क्या करते हो कि आपको AutoCAD सॉफ्टवेयर है, AutoCAD सॉफ्टवेयर में वो जो आप हाथ से ड्राइंग निकालते थे वही ड्राइंग आप AutoCAD सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। तो पीसी में आपके पास AutoCAD सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो उसके ऊपर आप ये ड्राइंग निकाल सकते हो। तो उसमें डिटेल में रहता है कि मतलब डिटेल में मेजरिंग रहती है, कौन सी रूम क्या है, मतलब किचन कहाँ पे है, बेड कहाँ पे है, वॉल थिकनेस कितनी है, कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है, या फिर डोर कितने हैं, विंडोज कितने हैं, वो सारा एस्टिमेशन जो है उसका टेबल जो है वो AutoCAD में ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे AutoCAD का यूज होता है। अब SketchUp सॉफ्टवेयर है क्या, या फिर SketchUp V-Ray क्या है, तो SketchUp क्या है, ये गूगल का सॉफ्टवेयर है। अब गूगल का एक SketchUp करके एक सॉफ्टवेयर है, SketchUp ये मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। तो मॉडलिंग मतलब क्या कि आप AutoCAD में सिर्फ 2D या 3D कर सकते हो, 2D प्लान जो है वो AutoCAD सॉफ्टवेयर में ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसका मॉडलिंग मतलब वो इन फ्यूचर कैसे दिखेगा, या फिर उसके बेडरूम कहाँ पे होगी, या फिर बेडरूम कहाँ पे होगी ये तो आप AutoCAD में देख सकते हो, लेकिन बेडरूम कैसी होगी, बेडरूम में बेड की पोजीशन कैसी कहाँ पे होगी, या फिर हॉल में फर्नीचर कहाँ पे होगा, ये सब जो है ये आप SketchUp में दिखा सकते हो। मतलब SketchUp क्या है, एक विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब आफ्टर कंस्ट्रक्शन हमारी बिल्डिंग ऐसे दिखेगी, ये आप अभी से SketchUp में ड्रॉ कर सकते हो, ये आप SketchUp में दिखा सकते हो। तो SketchUp जो है वो मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर है। और SketchUp V-Ray क्या है, V-Ray जो है वो SketchUp का ही प्लगइन सॉफ्टवेयर है। मतलब V-Ray में जो है वो आप मटेरियल्स, लाइट्स एंड रेंडरिंग का पार्ट रहता है V-Ray में। SketchUp में सिर्फ आप मॉडल बना सकते हो, लेकिन उसका रेंडर नहीं कर सकते। अब रेंडर क्या रहता है, रेंडर मतलब कि आप विजुअलाइजेशन, आप मॉडल तो बना रहे हो, लेकिन उसमें अगर आपको नाइट व्यू ऐड करना है, या फिर सनसेट व्यू ऐड करना है, या फिर आपको अगर कुछ दिखाना है, मतलब ट्रीज वगैरह जो है रहते हमारे घर के साइड में, वो सब अगर आपको दिखाना है, तो ये सब आप 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हो, ये इसको रेंडर बोलते हैं। तो आफ्टर रेंडरिंग मतलब रेंडर का इफेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए जो है वो एक्चुअल दिखना चाहिए, मतलब रियल इमेज दिखनी चाहिए, तो ये रेंडर होता है।
अब जो रेंडरिंग प्रोसेस जो है वो वीरे में होती है, मतलब स्केचअप का ही प्लगइन सॉफ्टवेयर है वीरे। तो वीरे में आप मटेरियल्स दे सकते हो, मतलब यहाँ पे अगर स्टोन का मटेरियल रहेगा या फिर टाइल्स का मटेरियल रहेगा, तो टाइल जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स रहती है, तो बाथरूम के लिए अलग टाइल होगी या फिर हॉल या बेडरूम में अंदर अलग टाइल होगी, तो टाइल का मटेरियल जो है वो वीरे में दे सकते हो। या फिर लाइट के भी बहुत से प्रकार, बहुत डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, मतलब IS लाइट्स रहती है, स्फीयर लाइट्स रहती है, रेक्टेंगल लाइट्स रहती है, ठीक है। तो ये सब जो लाइट इफेक्ट है वो वीरे में ऐड कर सकते हो आप। इस सब का मिलके आप क्या कर सकते हो कि एक वॉक थ्रू बना सकते हो, प्लस आप एक रेंडर, एक विजुअलाइजेशन इमेज क्रिएट करते हो। आप ये सब आप वीरे में करते हो। तो ऐसे ऑटोकैड, स्केचअप और वीरे, ये तीनों सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। तब आप जाके एक इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर फ्रेशर आर्किटेक्ट का एक रोल आप पा सकते हो, ठीक है। अब कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नॉलेज प्लस स्केचअप और वीरे का नॉलेज चाहिए। तो आपको तो पता चला कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर तो मस्ट है। अब सब कंपनी में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की नीड होती है, सब कंपनी ऑटोकैड पे ही वर्क करती है। अब जो इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी रहती है या फिर आर्किटेक्चर फर्म्स रहते हैं, वहाँ पे स्केचअप वीरे का यूज़ करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आप सीखोगे कहाँ से? तो हमने एक उसके लिए स्टूडेंट का जो कंसर्न था वो हम ओवरकम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल में। मतलब हमारी डिज़ाइन योर ओन यूनिवर्सिटी करके एक पोर्टल है, वहाँ पे आप स्पेस डिज़ाइन में, मॉडलिंग फंडामेंटल्स में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। प्लस स्केचअप वीरे सॉफ्टवेयर भी जो है, स्केचअप और वीरे सॉफ्टवेयर जो है वो भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। स्पेस डिज़ाइन में, मॉडलिंग फंडामेंटल्स में स्केचअप और स्केचअप वीरे, ये जो 2 सॉफ्टवेयर है वो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे जाके आप सीख सकते हो सारे सॉफ्टवेयर, ये दोनों सॉफ्टवेयर सीख सकते हो और आप आपके डिज़ाइनिंग फील्ड में आप अच्छे से आपके अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। अब ये तो हो गया कंपनी की तरफ से, लेकिन यूनिवर्सिटी और बाकी सॉफ्टवेयर भी दे रही है आपको। ये तो सॉफ्टवेयर स्किल्स हो गई। अब सॉफ्ट स्किल्स क्या है? आपके अंदर सॉफ्ट स्किल की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी होने चाहिए। तो सॉफ्ट स्किल्स मतलब क्या? जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स क्या? आपको लगता है कि हम जाके वहाँ पे जाके अच्छे से इंटरव्यू देंगे क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, कोई भी प्लान दो हम बना लेंगे। लेकिन अगर आपको प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, आपको अगर डिटेल में बोलना नहीं आता, तो उसका कुछ यूज़ ही नहीं है। तो ये सब जो है आपको प्रिपरेशन स्किल्स जो है वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। कहाँ पे जाके? यूनिवर्सिटी में जाके, स्किल अप सेक्शन में जाके, इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स में जाके आप आपके इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हो। एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, अब ये तो हर जगह नॉर्मल है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर 10 लोगों में बैठ के अगर आपका प्लान जो है, आपका जो मॉडल है वो अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो उन्हें आपका जो मॉडल है वो पसंद आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी पसंद आनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपके पास आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट होनी चाहिए। तो ये भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। कहाँ पे जाके? तो स्किल अप सेक्शन में जाके 5 इजी स्टेप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एक सेक्शन है, तो वहाँ पे जाके आप आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एक्सीलेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करना होगा और यूनिवर्सिटी में जाके आपको सब सॉफ्टवेयर सीख सकते हो तब, ठीक है। अब मैं तो बता रही हूँ यूनिवर्सिटी में जाके सीख सकते हो, यूनिवर्सिटी में जाके ये सीख सकते हो, वो सीख सकते हो। अब ये यूनिवर्सिटी है क्या? तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र इंटरफेस डाला है यूनिवर्सिटी का, जहाँ आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने सिविल के कोर्सेज 3-4 कोर्सेज का एक यूज़र इंटरफेस दिया हुआ है। तो आप सब्सक्राइब करोगे तो और डिटेल में आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी है क्या, और बहुत अच्छे कोर्सेज ऐड किए हुए उसमें। इंटरव्यू प्रिपरेटरी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मोटिवेशन स्किल्स, रेविट के कोर्सेज, मैक्स के कोर्सेज, ऑटोकैड के कोर्सेज, सब वहाँ पे इन डिटेल दिया हुआ है। प्लस आपको और जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको और सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए, तब भी तो वो सब आपको यूनिवर्सिटी में मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी आपका डिज़ाइनिंग फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटी आपकी ग्रैब करो, ठीक है। तो अब इस सॉफ्टवेयर में या फिर इस कंपनी में आप इंटरेस्टेड है, आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं, तो जल्दी से जल्दी इस दिए गए नंबर पे कॉल करो और इंक्वायरी करो सॉफ्टवेयर की। अगर कॉल नहीं करोगे तो फिर मेल कर सकते हो, इस दिए गए मेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो यूनिवर्सिटी पोर्टल को और कैड सेंटर में आपकी सीट प्लेस करो। ओके, सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।